Assalamualaikum students, let us begin with a new topic, that is assumptions of the law. What is law of supply we had studied in the last video. Now we are going to study the assumption of the law of supply. As I already explained you that there is assumption and exception of every law which we have to study. So now moving ahead, let us see what are the assumption of this law of supply. Now, as we all know that this price of the commodity also depend on the productions of the गुड्स एंड सर्विसेज. जिस तरीके से प्रोडक्शन होगा, जो कॉस्ट आपका प्रोडक्शन का रहेगा वही आपका जो है प्राइस होता है. सो इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हाई देन द सप्लाई विल बी लो. और हमारा लॉ क्या बोलता है? हायर द रेट हायर द सप्लाई, लोअर द रेट लोअर द सप्लाई. ओके. सो तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कि बहुत कॉस्टली है, 50-60,000 में अगर क्या हो रहा है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, बढ़ गया, सो द सप्लाई विल बी रिड्यूस. सप्लाई क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस विल क्रिएट दी लॉ ऑफ सप्लाई में जो है हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, it will not applicable, law of supply will be not applicable on that product. So here the point is the constant cost of production. The cost of production should remain the constant. No changes in the production of cost. जहाँ पर हम लॉ स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा लो कॉस्ट रहेगा प्रोडक्शन शुड रिमेन्स द सेम. ओके. Now moving to the next point, as we all know that our generation is changing, technologies are updating, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो क्या होता है कि जब टेक्निक इंट्रोड्यूस होती है सो उस हिसाब से काम होता है, उस हिसाब से प्रोडक्शंस होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द प्राइस विल बी चेंज ऑफ दैट प्रोडक्ट, है ना. और अगर न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस होती है सो प्रोडक्शंस भी ज़्यादा हो जाता है. ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ रहती है तो इतना प्रोडक्शंस नहीं होता है, बट न्यू टेक्नोलॉजी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है. तो व्हेन द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, whether your price is increasing or not increasing, but when the production is more the supply will be take place more. Okay, so here not due to price but due to the production, technique of production हमारा क्या हो रहा है, supply ज़्यादा हो रहा है. Hence the technique of production should remain constant throughout the law. Okay, moving next. Now you can observe the in picture the it is sweater. Okay, so the thing is the weather conditions. As the weather condition has changed, whether your price is increasing or not increasing, but the supply will be definitely affect due to the weather's conditions. Okay, जैसे कैसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी अगर आपको नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई है, ठीक है, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड ऑल, सो देयर विल बी डिक्रीज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो जाता है, सप्लाई रुक जाता है. Here the price is not increasing or decreasing, still the supply has been affected due to the weather of conditions. ठीक है, तो अभी जैसे अम्ब्रेला है, क्यों? अभी बारिश है तो वी आर यूजिंग अम्ब्रेला, बट एज द वेदर विल चेंज वी डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला. ओके, सो प्रोडक्शन उसका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू द वेदर चेंजेस. Got it? So no change in weather condition. Weather condition should remain same through the law, throughout the law. Now the next point is no change in government policy. As you all know that when the tax is increasing or decreasing, the supply also will increase or decrease, है ना. अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ गया कोई कमोडिटी पे तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. Got it? And if the tax is decreases तो the production will increase. So due to this उसमें क्या होगा कि दी इट विल इफेक्ट ड्यू टू टैक्स दी प्रोडक्शन इफेक्ट, एंड व्हेन द प्रोडक्शन इफेक्ट द सप्लाई विल बी डिपेंडेंटली इफेक्ट. ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा. सो देयर इज़ नो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर. Moving next point, now this is you can observe that is transport. Okay, mode of transport. So there are various mode of transport which we have we supplied the products or goods and services due to this mode of transport with the help of this mode of transport. अब mode of transport depend on the, देखो जो भी transport, आप एरोप्लेन से कुछ चीज़ें इधर उधर जा रही तो we have to pay
अकॉर्डिंग टू इट, है ना, उसका कॉस्ट उतना बढ़ जाता है ना। शिपिंग चार्जेस वी कैन से वी विच वी यूज टू से दैट शिपिंग चार्जेस, है ना, इधर से उधर सामान लाने के लिए जो चार्जेस होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की ही हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट लेते हैं, किसी सामने वाले को प्रोडक्ट देते हैं। अब अगर इन्हीं का प्राइस और भी बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मे बी सप्लाई रुक जाएगा। सो ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या हो रहा है, सप्लाई रुक रहा है। सो सप्लाई अगर रुक गया तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन क्या हो गया, जहाँ पे चेंजेस प्राइस में नहीं आया, बट ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देयर इज चेंजेस इन द सप्लाई। सो द पॉइंट इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड बी रिमेन कांस्टेंट, ओके। Now I have already explained you the other goods which we call as substitute goods and the complementary goods. So you all know about it that when the price of some goods changes, the effect will on the other goods. उसका इफेक्ट किस पे होता है, दूसरे गुड्स पे होता है, ठीक है, टी कॉफ़ी जो भी चीज़ है। सो हियर अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो सप्लाई में दूसरी कमोडिटी के फ़र्क आ जाएगा। सो there should be remain constant, okay, the price of the goods, other goods should remain constant। तो जिसका हम सप्लाई का देख रहे हैं गुड्स का, उसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा ड्यू टू द अदर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। सो द प्राइस शुड रिमेन constant। Now the last point is that no future expectation. What is future expectation? You already know, I have explained you with the एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स, ओके, कि क्या होता है कि हम आगे के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इफ़ द सप्लाई थिंकिंग इन फ्यूचर, जैसे किस स्थिति को इन फ्यूचर हमारा फ्यूचर ऐसा हो सकता है, ठीक है, वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। सो व्हेन द सप्लाई इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर के मे बी इन नेक्स्ट मंथ देयर विल बी इंक्रीज इन दिस प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो दे विल स्टॉक, वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक कर देंगे, वो लोग सप्लाई नहीं करेंगे। At the higher rate also they will stock the commodities, they will supply later on when there will be high in price, ठीक है, of that commodity। तो इसमें क्या हो रहा है कि हाई प्राइस में भी हम स्टॉक कर रहे हैं सप्लायर, एंड लो प्राइस पे भी वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से लो प्राइस पे भी लोग ज़्यादा सप्लाई करें। सो दिस विल क्रिएट कन्फ्यूजन एंड दैट इज़ मतलब लॉ के खिलाफ है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू द लॉ, ठीक है। सो द नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए फ्यूचर के बारे में, गॉट इट। Here we completed the assumptions of law of supply. Now we will moving to the exception of the law in the next video. So till now we have completed the assumption of the supply of law. So just go through it. बस खाली आपको वही है कुछ चीज़ें जो आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स बताना है, देन देयर इज नथिंग एल्स, ओके, थैंक यू।